So today we will solve the question of block solve problem. The first question we have is which of the following are applicable action in the start state. So as we have done in quiz 2, we will see that again. So for applicable, what we do, we check precondition of that action should be subset of start state. Start state is basically this one. And for relevant, there are two conditions: goal state, intersection. This is intersection effect plus. These are add effects. Add effects are effect plus. Their intersection should not be null, and goal state and intersection with delete effect, that is effect minus, should be null. So these are the two conditions. So first we will solve for applicable. So let's take the first point. If we take put down D, so what are the precondition of put down D? If we write check here, which we are talking about put down D, and preconditions are from here. No, sorry, not from here. Here. So holding X. So holding X. So this will be holding D, and you can see here there is this arm is holding nothing. So arm empty, it is there. So this cannot be subset of start state, because in start state here nothing is holded by the arm hand, robot hand. So this option is wrong. First is wrong. Now we will check for second one. So if we check for unstack D comma B, so what are the precondition of unstack D comma B? If we check here we have this one. So arm empty is there and clear X, meaning here we will have clear D, and one more is holding X. No, sorry, on XY. So on D comma B. So if we check on arm empty first, yes, there is arm empty, clear D. We can see clear D also, clear D is here, and on DB is here. So this will satisfy this condition, that is precondition of action should be subset of start state. So this is correct. You can check for, similarly you can check for unstack CA. I will check now for pickup E. Pick up E. So what are the preconditions? Here we can see preconditions are arm empty AE comma clear X meaning clear E, and on table X meaning on table E. And if we check with this our start state, so we have arm empty here, that is done. Clear E is also here, and finally on table E, that is also here. So this will also satisfy. So now I will check for one pickup A, and then finally stack AC. So if we check for pickup A, what are the precondition of pickup A? Again we will have arm empty, that is there, and we will have clear A. So we can clearly see here clear A is not possible, because for that we and in our start state also there is no clear A. So this will be this will not come in our answer. And finally let's check for stack AC. Stack AC. So stack AC preconditions are holding X. So we will have here holding A, and we don't need to check further, because you can see our robot's arm hand is empty, it is not holding anything. So this option will. So we will now solve for the relevant action. So first revision of the what we check. So for relevant, our goal state intersection effect plus should not be equal to 0, and goal state intersection effect minus should be equal to 0. So this there is a and, so keep this in mind, both should be true.
So let's take the option put down D, put down D, and if we check add effects of this, sorry, not this, put down D is this. So we will have arm empty comma on table D. And if we check from our goal description, there is nothing common because we don't have a robot hand over here, so no arm empty is true. आर्म एम्प्टी भी नहीं आ रहा है और ऑन टेबल डी भी नहीं आ रहा है, तो कुछ है ही नहीं इसमें इफेक्ट प्लस में। और इफेक्ट प्लस के साथ अगर हम ये गोल स्टेट और इफेक्ट प्लस का हम अगर इंटरसेक्शन लेंगे बेसिकली इसका और इसका, तो हमारा 0 आ रहा है, बट हमारा कंडीशन क्या है, 0 नहीं आना चाहिए। तो पहला ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स ही आएगा, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा एंड है। अगर हम अनस्टैक डी और बी को लेते हैं, अनस्टैक डी कॉमा बी, तो इसका पहले हम ऐड इफेक्ट लिखते हैं। अनस्टैक डी कॉमा बी का ऐड इफेक्ट होगा क्लियर बी कॉमा क्लियर होल्डिंग डी। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो गोल्ड स्टेट है इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, तो अगेन हमारा पहला वाला कंडीशन 0 आ रहा है, जो कि है गोल स्टेट इंटरसेक्शन इफेक्ट प्लस 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू। सो ये अगेन हमारा यहीं पे ऑप्शन रॉन्ग हो गया, हम आगे चेक नहीं करेंगे इसमें। नाउ वी विल सी फॉर unstack CA, similarly we can check. Now let's check for pickup E, and if we see the add effects of pickup E are holding E। और अगर हम फिर से चेक करें इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमें कॉमन चाहिए था, पर क्योंकि इफेक्ट प्लस के साथ हम कॉमन में कुछ 0 नहीं आना चाहिए, तो अगेन हमारा ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। अब हम चलते हैं स्टैक बी पे। पिकअप ए वी कैन चेक सिमिलरली, सो ये वाला और ये वाला चेक करते हैं। स्टैक बी ए, स्टैक बी कॉमा ए, तो अगर हम प्री कंडीशन सॉरी ऐड इफेक्ट स्टैक बी ए का देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा हमारा आर्म एम्प्टी कॉमा ऑन एक्स वाई, तो ऑन बी कॉमा ए। आर्म एम्प्टी तो हमारा नहीं है गोल डिस्क्रिप्शन में, पर ऑन बी है, ऑन बी ए है, तो ये हमारा नल नहीं आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमें दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे एंड है। तो अगर हम इसका डिलीट इफेक्ट्स देखें, डिलीट इफेक्ट्स होगा होल्डिंग एक्स, तो यहाँ हमारा होल्डिंग बी कॉमा क्लियर ए। और अगर हम इसका गोल डिस्क्रिप्शन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो नथिंग इज कॉमन, तो ये 0 आएगा जो हमें चाहिए। सेकेंड है हमारा गोल स्टेट इंटरसेक्शन इफेक्ट माइनस शुड बी इक्वल टू 0, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। लेट्स चेक फॉर द लास्ट वन, दैट इज स्टैक AC। स्टैक ए कॉमा सी पे चेक करते हैं, और अगर हम इसका इफेक्ट प्लस लिखेंगे यहाँ, तो आर्म एम्प्टी कॉमा ऑन ए कॉमा सी, तो ऑन ए कॉमा सी हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि गोल स्टेट इंटरसेक्शन इफेक्ट प्लस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमारा 0 नहीं है 1 आ रहा है। तो अगर हम पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हम दूसरे के लिए चेक करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, डिलीट इफेक्ट्स हमें ऐड करना होगा, तो होल्डिंग एक्स की जगह हमारा हो जाएगा ए, और कॉमा क्लियर वाई की जगह हो जाएगा सी। तो इसमें और हमारे गोल डिस्क्रिप्शन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, जो कि हमारा दूसरा कंडीशन है, तो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर में होगा। नाउ वी विल सॉल्व फॉर म्यूटेक्स। इससे पहले मैं वीडियो एक बार पॉज कर लूँ। सो बिफोर सॉल्विंग द म्यूटेक्स क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं क्या होता है। तो ये वीक 8 सप्लीमेंट्री कंटेंट्स में मिल जाएगा, हमें वीक 8 के फोल्डर में ये डॉक।
तो वहाँ से मिल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं द नो ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। जैसे यहाँ पे ये पहला वाला जो हमारा है, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट स्टेट में जो भी दिया था, जैसे ये पहला पी नॉट के ऊपर जो भी स्टार्ट स्टेट में था, अगर हम उस पर नो ऑफ लगाएंगे एक्शन, तो वो सेम वो अगले नेक्स्ट लेयर में भी आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ इन्होंने क्या भी दिया, वी विल एज्यूम द नो ऑफ एक्शंस टू बी इम्प्लिसिट इन आवर फिगर्स। तो हम क्वेश्चन में भी ये नो ऑफ एक्शन को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थर्ड लाइन, यहाँ पे सेकंड लाइन बेसिकली, ये इसके अंदर इट हैज़ वन प्री कंडीशन, और प्री कंडीशन इसका हमेशा खुद ही होगा, एंड वन पॉजिटिव इफेक्ट। तो इसके पास नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, बस पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और वो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन टेबल बी जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट वही होगा, ऑन टेबल बी ही होगा, और प्री कंडीशन भी सेम ही होगा। सिमिलरली सारे के लिए होगा। और अगर हम एक और स्लाइड है, तो इसमें हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूटेक्स, या बेसिकली टू एक्शंस कब म्यूटेक्स होते हैं हम वो देखेंगे। तो यहाँ 4 तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो हम लोग मैं इसमें पहला वाला ही यूज़ करूँगा, कंपीटिंग नीड्स। जहाँ लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट प्रोपोजिशन पी ए belongs to pre-condition of A and PB belongs to pre-condition of B such that PA and PB are mutex। तो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो म्यूटेक्स में बेसिकली होता क्या है कि हमें ऐसे कौन से दो ऐसे सपोज एक एक्शन ए है और एक एक्शन बी है, तो म्यूटेक्स वो एक्शंस होंगे जो एक साथ एप्लीकेबल नहीं है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। हमें नो ऑपरेशन जो मैंने बताया वो ध्यान में रखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ये वाला, 2 क्वेश्चन इस पे आते हैं। पहले हमें म्यूटेक्स एक्शन पेयर्स बताने होते हैं, म्यूटेक्स एक्शन पेयर्स। तो हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमने अभी क्या देखा था, प्री कंडीशन ऑफ ए और प्री कंडीशन ऑफ बी, दोनों को चेक करेंगे। अगर दोनों में कॉमन आ गया कुछ भी, तो वो हमारा म्यूटेक्स पेयर होगा, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं कि दोनों एक साथ एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो फिर दोनों एप्लीकेबल एक साथ होगा। तो हमें चेक क्या करना है कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा म्यूटेक्स पेयर होगा। तो दोनों में अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो वो हमारा म्यूटेक्स पेयर नहीं होगा। और अगर प्री कंडीशन ऑफ एक एक्शन का और दूसरे एक्शन का इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो हमारा म्यूटेक्स होगा। म्यूटेक्स मीनिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो लेट्स हम देखते हैं अनस्टैक डीबी और पिकअप ई के लिए। अनस्टैक कॉमा डी कॉमा बी कॉमा पिकअप ई। तो दोनों का हम प्री कंडीशन पहले लिखते हैं। ठीक है। तो प्री कंडीशन अनस्टैक डीबी का अगर हम लिखे यहाँ से, अनस्टैक में होगा आर्म एम्प्टी ए ई क्लियर एक्स। तो क्लियर एक्स की जगह हमारा हो जाएगा क्लियर टी, और एक हमारा हो जाएगा ऑन एक्स वाई, तो ऑन डी कॉमा बी। और अगर हम पिकअप ई का प्री कंडीशन देखिए, पिकअप ई का प्री कंडीशन तो आर्म एम्प्टी ए ई और क्लियर ई और ऑन टेबल ई, ऑन टेबल ई। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हमें अगर इस दोनों के प्री कंडीशन में कुछ भी कॉमन मिल गया तो वो हमारा यहाँ म्यूटेक्स एक्शन पेयर होगा। तो यहाँ पे हमें आर्म एम्प्टी इसमें भी मिल रहा है और आर्म एम्प्टी इसमें भी मिल रहा है। तो बेसिकली ये दोनों एक साथ एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए ये हमारा म्यूटेक्स पेयर होगा। तो पहला वाला हमने चेक कर लिया। अब हम दूसरे वाले के लिए चेक करते हैं। इसमें भी अनस्टैक डी बी ही है और एक है हमारा अनस्टैक सी ए। तो इसमें चेंज करते हैं, अनस्टैक सी कॉमा ए। तो अगर हम इसका प्री कंडीशन देखें अनस्टैक डी बी का, तो कंडीशन हमने क्या देखा था यहाँ, आर्म एम्प्टी, आर्म एम्प्टी, एक सेकेंड, हाँ आर्म एम्प्टी। और उसके बाद हमारा था क्लियर एक्स, तो क्लियर एक्स की जगह हमारा आ जाएगा क्लियर डी
क्लियर डी, और उसके बाद हमारा है ऑन एक्स वाई, तो ऑन एक्स वाई की जगह हो जाएगा ऑन डी कॉमा बी। अनस्टैक सी ए में भी हमारा आर्म एम्प्टी आएगा और क्लियर सी आएगा और ऑन सी कॉमा ए आएगा। तो फिर से हम यहाँ देख सकते हैं ये आर्म एम्प्टी दोनों में कॉमन है। हमारा म्यूटेक्स एक्शन पेयर क्या होगा, अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो हमारा म्यूटेक्स एक्शन पेयर होगा, तो ये वाला भी हमारा होगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करें तो हमारे पास है पिकअप ई एंड स्टैक बी कॉमा ए। तो लिखते हैं इसके लिए प्री कंडीशन पिकअप ई का हो जाएगा हमारा आर्म एम्प्टी ए और क्लियर ई और ऑन टेबल ई। और स्टैक डी की बात करें तो इसमें हमारा हो जाएगा होल्डिंग एक्स मीनिंग होल्डिंग बी और एक है क्लियर वाई मीनिंग क्लियर ए, क्लियर ए। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, ये दोनों अलग अलग है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हमारा म्यूटेक्स एक्शन पेयर नहीं होगा। तो इससे ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अब हम स्टैक एसी के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ हमारा स्टैक एसी हो जाएगा ए कॉमा सी, और यहाँ होल्डिंग बी की जगह ए हो जाएगा और क्लियर ए की जगह सी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा म्यूटेक्स एक्शन पेयर नहीं होगा। Now we will check C for the mutex. So coming to the last part of our question, जहाँ हमें इससे पहले हमने म्यूटेक्स एक्शन पेयर ढूंढना था, अभी म्यूटेक्स प्रपोजिशन पेयर हमें ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर इस क्वेश्चन का उतना पार्शियली करेक्ट हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी फुल्ली भी करेक्ट हो सकता है। तो एक में से आधा मार्क्स तो लाना बेटर ही है 0 से। तो अभी तक मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि ऑन नो ऑप, तो नो ऑप यहाँ पे मैंने सारे स्टार्ट स्टेट को लिखा है और उस पर नो ऑप लगा के इधर उसी को सेम यहाँ उतार दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया है यहाँ पे इसे मैंने NOP1 नाम दिया, इसे NOP2, इसे NOP3, ऐसे करके NOP9 तक दिया है। और ये वाला जो है ये तीनों हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था म्यूटेक्स एक्शन का, वहाँ से ये तीनों आएंगे। और अभी हम यहाँ पे इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऐड करेंगे। तो अगर अनस्टैक डीबी का पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखें तो हमारे पास आएगा क्लियर बी और एक आएगा होल्डिंग डी। और इसके लिए देखिए अनस्टैक सी के लिए, तो इसके लिए भी आएगा क्लियर ए होल्डिंग सी। और फाइनली पिकअप ई के लिए देखें तो पिकअप ई के लिए हमारा आएगा पॉजिटिव इफेक्ट होल्डिंग ई। तो ऐसे ये इससे आ रहे, ये इससे आ रहे और ये इससे आ रहे। अब हम इनके नेगेटिव इफेक्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पिकअप ई को भी। तो पिकअप ई का एक नेगेटिव इफेक्ट है आर्म एम्प्टी और एक है ऑन टेबल। तो आर्म एम्प्टी ऐसे यहाँ जाएगा, ऑन टेबल ऐसे हम इधर ले आते हैं ऑन टेबल ई। और अनस्टैक डीबी का देखें तो अनस्टैक डीबी का है आर्म एम्प्टी, इसका भी है आर्म एम्प्टी और ऑन एक्स वाई, तो ऑन टीबी हो जाएगा हमारा। और सिमिलरली यहाँ पे अनस्टैक सी का आर्म एम्प्टी और ऑन सी ए। तो म्यूटेक्स प्रपोजिशन पेयर में हम क्या करते हैं, किसी हम पॉजिटिव वाले को देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स को। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें हमारा ये दोनों पॉजिटिव इफेक्ट्स है अनस्टैक डीबी का, ये दोनों अनस्टैक सी का और ये ई का। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमारे ऑप्शंस में क्या है, क्लियर बी और होल्डिंग सी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लियर बी हमारा अनस्टैक डीबी से आ रहा है और होल्डिंग सी हमारा अनस्टैक सी ए से आ रहा है।
तो ये दोनों के पेरेंट्स क्लियर बी और होल्डिंग सी के पेरेंट्स म्यूटेक्स थे, तो ये भी म्यूटेक्स होंगे। और सिमिलरली अगर हम क्लियर बी और क्लियर ए को भी देखें तो ये क्लियर बी अनस्टैक बी से आ रहा और क्लियर ए अनस्टैक सी से आ रहा। तो इन दोनों के पेरेंट्स भी म्यूटेक्स थे और ये दोनों पॉजिटिव इफेक्ट्स है, तो ये दोनों भी हमारे म्यूटेक्स होंगे। तो मैं ये बोल रहा था, इस केस में हमारा आंसर फुली करेक्ट होगा। पर किसी किसी केस में अगर हमें नहीं मिला तो हम एक को भी ले सकते हैं। अगर और यहाँ पे सर ने डिस्कोर्स पे मैंने पूछा था तो ये बताया है, तो अगर आप लोग देख सकते हैं ये, और अगर समझ आए तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्कोर्स पे ये पोस्ट है दिसंबर 15 का ही। तो बस इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मैंने यही किया था, स्टार्टिंग स्टेट लिख दिया था और इसका NOP इधर लिख दिया था, और उसके बाद ये तीनों हमारे म्यूटेक्स सेक्शन थे, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और उनका पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स लिख दिया। और एक और चीज़ हमें ध्यान में देना, ये जो है हमारा ये वाला, ये हमारा इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम क्लियर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं ये सब, तो ये सब अगर पहले से है तो हम ऐड नहीं करेंगे। ये हमारा एक यूनियन होगा। बस हो गया।